Hello everyone, welcome back to ASMC Maths classes. In this video, we are going to continue our study of permutation and combination with the help of JEE Main 2021 questions. Okay, in this we are going to revise and recall the concepts of permutation and combination with the help of JEE Main 2021 questions. This is the second part to that. Okay, we will provide you best solutions with the best explanation. Okay, so let's see the very first question. The very first question says there are 5 students in class 10 and 6 students in class 11 and 8 students in class 12. If the number of ways in which 10 students can be selected from them so as to include at least 2 students from each class and at most 5 students from the total 11 students of class 10 and 11 is 100k, then k is equal to. See, इस क्वेश्चन में हमें टोटल स्टूडेंट्स कितना सेलेक्ट करना है 10, ठीक है ना। सिलेक्शन जो करना है दैट इज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे हम अगर इसमें क्लासेस देखें हाउ मेनी क्लासेस वी हैव 10 11 एंड 12 भी है। सो वी हैव 10 11 एंड 12 क्लास। in 10th class we have how many students 5 in the very first line it is written, and in 11 it is 6, okay, and in 12 it is 8. Now out of them the selection is like at least 2 students we have to select from all of the classes, okay. सो एक सिलेक्शन ऐसे हो सकता है कि इसमें से 2, इसमें से 2 एंड इसमें से 6. द नेक्स्ट सिलेक्शन विच कैन हैपन इज लाइक इसमें से आप 2 उठा लो, इसमें से 3 उठा लो और इसमें से 5. ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट सिलेक्शन विच कैन वाइस वर्सा हैपन विद 10th एंड 11th इज 3 2. सी एट मोस्ट 5 ही लेने हैं 10th एंड 11th में से, तो बस यही सिलेक्शन और पॉसिबल हो पाएगा और इधर फिर से क्या आएगा 5 आएगा. And now we just have to calculate, okay, with the help of basic selection. Like 5 में से 2 select करा in the very first case, it is like 5c 2, 5 में से 2, 10c into 6c 2 into 8c 6. So with the help of basic combination knowledge, we know that 5c2 is 10, okay, and 6c2 is what, 6 into 5 upon है ना, 2 into 1 this is 15, and similarly 8c6, ठीक है ना, that is 8 into 7 56, 28 हो जाएगा upon 2. And for the next case again we have 5c2, all right, I'm talking about this 2, and then into 6c3 into 8c5. So this is again 10 into 6c3 will be 20, we know that, and 8c5 is 56, we also know that, है ना, with the same combination knowledge. And this is 5c3 next time, multiply by, next time we have to select 2 out of 6 total of 11th class, that is again 6c2, and the next is 8c5. So this is going to give you 5c3 same as 5c2, and 6c2 that is again 15, 8c5 that is again 56. So the very first number which is coming out as 28 multiplied by 15, okay, so this is 4200, 10 is also there, next is 11,200, and next is 8,400. If we sum them all, adding them all will give the final answer, that is going to be 23800. Okay, so now this is given as 1100k, 100k, sorry, 100k is given, so you just cancel out the 100, so k turns out to be 238. So 238 should be the answer. I hope this is clear. Let's go to the next question. Yeah, this is the next question. So what is it saying? There are 15 players in a cricket team, out of which 6 are bowlers, 7 are batsmen, and 2 are wicket keepers. The number of ways in which a team of 11 players be selected from them so as to include at least 4 bowlers, 5 batsmen, and 1 wicket keeper. Okay. This is a question from July, and previous was also from July, I think. So we will see again that. And we are discussing actually July edition first and then August also from the JEE Main. Okay. So now they are talking about cricket players. There are 15 players in the team, out of which 6 are bowlers. Now we have bowlers and then batsmen and then wicket keepers. All right. So 6 are bowlers and 7 are batsmen and 2 are wicket keepers. Number of ways in which 11 players are selected. Now selection is this time
from 11. Total 11 we have to select out of 15. So as to include at least 4 bowler, 5 batsmen and 1 wicket keeper. ओके, तो बॉलर हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 6. तो एक सिलेक्शन तो यही हो सकता है 4, 5 एंड विकेट कीपर आप कितने चुन लो? 2 चुन लो. नेक्स्ट आप बॉलर एक 4 से ज्यादा भी चुन सकते हो, तो 5 हो सकता है एंड बैट्समैन कितना हो सकता है? स्टिल 5 हो सकता है और यहाँ पे 1 आ जाएगा. एंड नेक्स्ट अगर आप बॉलर 6 चुनते हो तो उसमें आप कहाँ फंस सकते हो? आप बैट्समैन यहाँ पे कितने, आप क्या 5 मतलब है ना, आपको कितने बैट्समैन उठाने हैं? एटलीस्ट 5. तो 6 एंड 5 तो 11 वही हो गया आपका. तो विकेट कीपर तो आएगा नहीं. तो आपको नेक्स्ट सिलेक्शन किस तरह से करना होगा? नेक्स्ट सिलेक्शन में आप क्या करोगे फिर? आपके पास यहाँ पे बॉलर 4 हो सकते हैं इसलिए, और नेक्स्ट बैट्समैन कितने हो सकते हैं? 6 एंड विकेट कीपर कितना हो सकता है? 1. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम इसके अलावा और कोई सिलेक्शन नहीं बना पाएंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पे बॉलर कितने, अब इसको बस वी हैव टू जस्ट अगेन अप्लाई द कॉम्बिनेशन फॉर्मूले. वी नो दैट, एंड दिस इज अगेन 6c4 मल्टीप्लाई बाय 7c5 मल्टीप्लाई बाय 2c2. ऑलराइट, सो दिस इज अगेन 6c4, अभी हम पीछे भी करके हटे हैं 6c2. ऑलराइट, तो दिस इज 6c2 इज 15 and 7c5 is 7c2, that is again 21, and this is again 1. So what is 21 multiplied by 15 now? This is 210 plus 105, so this is 315. And the second case, this is the first case, we are talking about this case, and the second case is this 551. इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे 6c5 7c5 2c1. So this is 6 into again 21 into 2. So this is 252. Third case is the last one. Okay, so this is 6c4 into 7c6 into 2c1. So this time again we are getting 6c4 is 15 into 7 into 2. So this is giving us 210. So if we add them all, अगर हम इन तीनों केसेस को ऐड करें तो हमारा टोटल आंसर आ जाता है 777. So that is the answer to this question. I hope this is all clear to you. So we shall move to the next question now. Okay, so this is the next question. In the next question, we can see the number of 4-digit numbers which are neither multiple of 7 nor multiple of 3. So this is, we can do this easily with the help of principle of inclusion exclusion. We have already talked in our previous video of JEE question solving series about this. This is nothing but A union B का formula से ही इसकी शुरुआत होती है. P of A union B, P of N of A union B, N of A plus N of B minus N of A intersection B, है ना. So neither multiple है ना, neither nor के लिए क्या करोगे? इधर और वाला निकाल के टोटल में से माइनस कर दोगे. और 4 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1000 से लेके 9999 तक होते हैं. तो ये कितने नंबर हो गए? 9000 नंबर हो गए 4 डिजिट के. ओके, तो अब यहाँ पे जो मल्टीपल ऑफ 7 आ रहे हैं वो सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 7 आता है, ठीक है ना. उसको गिनने के लिए हम 1007 एंड देन 1008 एंड देन द लास्ट नंबर इन द सीरीज इज 9996. आप 4 हाँ 49 को आप 7 से डिवाइड करके है ना देख सकते हैं और आप वहां से इजिली ये नंबर निकाल सकते हैं. तो इसके लिए हमें इनका नंबर निकालने के लिए 9996 को इक्वल टू एपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है प्लस n माइनस 1 इंटू 7. दिस इज 8995 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1. ओके, सो दिस इज 1285 प्लस 1 इक्वल टू n. सो n ऑफ 7 यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है? 1286. सिमिलरली अगर हम n ऑफ 3 इस तरीके से देखें हम तब भी देख सकते हैं, एक शॉर्टकट भी है. 1001 के बाद 1002 से हम शुरू करेंगे और ऐसा है कि और 9999 तक जाएंगे, 4 टाइम्स 9 तक जाएंगे. पर n ऑफ 3 निकालने का ये भी तो है कि 9000 में से 3 ही मतलब डिवाइड बाय 3 कर लो, है ना. तो एवरी थर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वी नो दैट. तो 3000 नंबर आर डिविजिबल बाय 3. एंड देन n ऑफ 21 क्या होगा? जो 7 एंड 3 दोनों से, तो सबसे पहला मैंने बताया था अभी 1002 होगा और लास्ट वाला जो 7 से है वो 9996 है. इससे नेक्स्ट अगर इस सीरीज में देखें 21 से डिवाइड होने वाला, सो दैट इज गोना बी
सो 1002 जो है वो 3 से है पर 7 से नहीं है। वेट, तो यहाँ पे जो 7 से भी डिविजिबल आएगा बच्चों, वो हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो 1008 है, और वो 3 से भी डिविजिबल है। सो 1029 नेक्स्ट आ जाएगा, एंड सो ऑन करते करते 9996 जो है वो 7 और 3 दोनों से, इसलिए हेंस वो 21 से भी डिविजिबल है। सो अगेन यहाँ पे हम वही लॉजिक लगाएंगे एपी के एनथ टर्म वाला, 9996 इज इक्वल टू 1008 प्लस n माइनस 1 इंटू 21। अब बस सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे, हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 8988 अपॉन 21 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल टर्न आउट टू बी 428 आ जाएगा, पहले उसको डिवाइड करके तो 429 आंसर आ जाएगा। ओके, so this is n of 21. These are the numbers which are divisible by 21. Now the final answer, as we already talked about, final answer कैसे आने वाला है, टोटल में से हम इन तीनों को, है ना, इनका यूनियन कर लेंगे पहले। n of 7 यूनियन 3 अगर हम सोचे, सो 9000, इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगेगा ना, n of a यूनियन b, n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। तो n of 7 1286 प्लस 3000 माइनस 429। सो दिस इज 9000 में से अगर इन सबको हम एडअप करें, सो दिस इज 3857, आंसर आ जाता है 5143। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5143। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज very famous kind of question. This is 1p1 plus 2p2 and so on up to 15p15, बस इसको थोड़ा चेंज करके दे दिया, pqs qrs की वैल्यू हमें निकालनी थी। सो सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, 1p1 इज 1 फैक्टोरियल एंड 2 इंटू 2p2 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू 15 मल्टीप्लाई बाय 15 का फैक्टोरियल। दिस इज qpr माइनस s आफ्टर दैट। 1p1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 multiplied by 1 factorial, and if we just realize LHS, that is nothing but summation of r multiplied by r ka factorial, and r is going from 1 to 15. So in this we can do what we can do with this r is we can add 1 and subtract 1 to produce a telescoping series. The concept of telescoping series has been asked many a times in JEE Main. Okay, सो दिस इज नाउ r प्लस 1 को अगर r फैक्टोरियल के साथ करेंगे तो r प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और माइनस 1 को करेंगे तो माइनस r का फैक्टोरियल बन जाएगा। समीशन इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से 15। नाउ वी जस्ट हैव टू ओपन इट, पुट r इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड नेक्स्ट टाइम पुट r इज इक्वल टू 2, सो व्हाट इज इट गोना बी 3 फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल, and plus so on up to it is going to be 16 factorial minus 15 का फैक्टोरियल। वन कैन इजीली सी 2 फैक्टोरियल पहले कट रहा है, और अगर पहले ही दो टर्म्स में इसका -1 और उसका 3 बच रहा है तो ऐसे 3 भी कट जाएगा, ठीक है ना, और फ्यूचर में 3 कट जाएगा लाइक, और लास्ट वाले का ऐसे सिर्फ 16 बचेगा क्योंकि सेकंड वाले का फर्स्ट बच रहा है। तो दिस इज अ सेम कंसेप्ट ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज। तो आंसर बचा 16 फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल। नाउ दिस इज QP, now this is equal to QPR minus S. One can compare now easily कि S की जगह पे हमें 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, so which is 1 and QPR is equal to 16 फैक्टोरियल। तो यहाँ से Q और R दोनों ही 16 बन जाएंगे क्योंकि 16 is 16 फैक्टोरियल। अगर हम इसकी वैल्यू को बस वहां ऊपर प्लग कर दें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, Q प्लस S, so that is 17 plus 1 16 plus 1 17, सी आर माइनस एस, आर भी हमारे पास कितना आ रहा है 16, तो वहां पे 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। तो दिस इज सेम एज 17C2। नाउ 17C2 इज 17 इंटू 16 अपॉन 2, तो 17 इंटू 8 रह गया विच इज 136 इज द आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। And the last question in this series for now we are seeing is this 5th question. The sum of all 3-digit number less than or equal to 5000 that can be formed without using the digit 1 and they are all multiple of 11. Okay, in this question the 3-digit numbers less than 500 भी दिया हुआ था, और and more than हमें यहाँ पे 200 भी दिया हुआ था, and more than
200 भी था। तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इन द सॉल्यूशन द 3 digit numbers more than 200 and multiple of 11. So very first number like 198 last 3 digit number होता है 200 से पहले, है ना? So we know that. And after that we have 209. So 209 से हम शुरू करेंगे and now we have to see which the numbers which can be found without using digit 1. ओके 1 नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। तो इसके लिए अगर हम पूरा एनोमरेशन ही कर दें इजीली हो जाएगा हमारे पास 200 से 500 के बीच में। तो नेक्स्ट इज 218, 229, 218 नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा 209 के बाद 220, 231, 242, 253, 264, 275, 286, 297, and in the series the next number is 308, 319, 330. All right, and next is 341, next is 352, 363, 374, 385, 396, 407. Okay, you can easily add up 11 and always get these kind of numbers. Okay, 484 and 495. Now we can easily see जिनमें 1 आ रहा है 231, 341, 319, 451 and 418, बस यही है वो नंबर्स एंड बाकी सबको हमने एडअप कर देना है। तो यहाँ पे 209 जो है वो 11 का कौन सा मल्टीपल है? ओके, तो ये हमें पता है एंड 209 से बेसिकली 495 तक हमें देखना है ना। तो 495 को हम इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं 209 प्लस n माइनस 1 इंटू 11। अगेन एपी का फार्मूला लगाया बच्चों मैंने यहाँ। तो फ्रॉम हेयर यू गेट 495 minus 209 upon 11 plus 1 is equal to n. So n turns out to be 27 over here. n यहाँ से 27 आ जाएगा, इजीली आप देख पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से अगर n7 आ गया तो सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11 है ना, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11 जो आ रहा है हमारे पास फ्रॉम 209 to 495, दैट इज 27/2 मल्टीप्लाई बाय 209 प्लस 495। ओके बच्चों, so what is that? 27/2 multiply by 27/2 multiply by what do you see in that? 614. Okay, that is 209 plus 495 है ना, 695 plus 9 704. Okay, and if you just cancel out and solve that, what do you get? This is 357. So this turns out to be 9504. Okay, 27 into 357 अगर हम करेंगे वो 9504 आ जाएगा हमारे पास। Yeah, and the next if we just add them up, because the numbers we have to find है ना, हमें कैसे नंबर निकालना है which can be found without using digit 1। तो ये 1 वाले डिजिट हमें वाले चाहिए ही नहीं है ये। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा, रिक्वायर्ड सम जो आएगा दैट इज 9504 माइनस उसमें से क्या क्या माइनस हो जाएगा, ये चारों का सम पांचों का 231 प्लस 319 प्लस 418 प्लस 341 प्लस 451, इन सबको एडअप करके अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला बच्चों यहाँ से? वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, दिस इज 9504 और अगर हम उन सबको एडअप करके रख लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1760। ओके, तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 7744। तो 7744 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी कंसेप्ट क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सम फार्मूला व्हिच विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन, सो वी जस्ट एनलिस्टेड द नंबर्स बिकॉज देयर आर वेरी easily countable numbers from between 200 and 500 which are multiple of 11 and उनमें से 1 के डिजिट वालों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया उनके सम से, तो हमारा आंसर आ गया। तो आई होप अगेन आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है एंड do not forget to like, share and subscribe to our channel if you really like this video. All right, keep on preparing your best for GE.